Good morning to all one and all present. Welcome to Atmiya Green School, Jai Swaminarayan. Today I start with class 7, book history, lesson number 6. That is towns, traders and craftsperson. Students, I had already started this lesson in my previous class. Okay, so I will continue from page number 80 of your history text till lesson number 6. There were also communities like the Chetiyars and Marwari Oswals. ये ना मारवाड़ी की कास्ट है, चेतियार्स और मारवाड़ी ओसवाल्स, who went on to become the principal trading groups of the country. Gujarati traders, including the communities of Hindu Baniyas and Muslim Bohras, traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. Okay, that is Gujarati जो traders थे, including the communities of Hindu Baniyas और Muslim Bohras, ये together इन्होंने trading को extensively किया है और किन किन ports के साथ Red Sea, Persian Gulf, East Africa and Southeast Asia and China. They sold their textiles, जो उनके वहाँ पे textiles बनते थे, and spices in the ports. और उनके बदले in exchange they bought the gold and ivory from Africa and spices, tin, Chinese blue pottery and silver from Southeast Asia and China, यानी barter system. वो उस जो अगर वो एक्सपोर्ट करते थे तो उसी में रिटर्न में उतने में वो इंपोर्ट करते थे, वो एक दूसरे को कैश की डिलीवरी नहीं करते थे. The towns on the west coast were home to Arab. Okay, that is the towns on the west coast were home to Arab, Persian, Chinese, Jewish and Syrian Christian traders. Okay, जो वेस्ट कोस्ट के किनारे जो टाउन थे वो अरब्स वहाँ रहते थे, पर्शियन. पहले टाइम में एंशियन और मेडिवियल में मोस्टली जो टाउन्स डेवलप होते थे इट वाज नियर द ओशंस, पोर्ट्स. अरब्स थे, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स. ये सबको हिटलर बहुत नफरत करता था. इंडियन स्पाइसेस एंड क्लॉथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स वर परचेज्ड बाय इटालियन ट्रेडर्स and eventually reached European markets. Okay, जो भी इंडियन स्पाइसेस और क्लॉथ है वो रेड सी को एक्सपोर्ट होता था, बाहर जाता था और फिर उसे इटालियन ट्रेडर्स परचेस करते थे और फिर आगे यूरोपियन कंट्रीज में जाकर बेचते थे और ह्यूज प्रॉफिट्स गेन करते थे. Spices grown in tropical climates, that is pepper, cinnamon, nutmeg, dried ginger, became an important part of European cooking and cotton cloth was very attractive. This eventually drew European traders और ये सब कुछ देखकर यूरोपियन ट्रेडर्स को लग रहा था कि हम किसी के जरिए क्यों खरीदें. ओके, हम डायरेक्ट ये इंडिया के साथ करें. सो वी विल शॉर्टली रीड अबाउट दिस द चेंज ऑफ फेस्ड एंड ट्रेडिंग एंड टाउन्स. फिर क्या हुआ, पहले तो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, बाहर जाता था, फिर एक दूसरे की कंट्रीज दूसरी कंट्रीज को बेचती थी, वो प्रॉफिट कमाती थी. ओके, तो फिर बाकी जो यूरोपियन कंपनी ने सोचा कि हम डायरेक्टली क्यों नहीं इंडिया में जाके इसका बिजनेस करें ताकि हमारे बीच में कोई हो नहीं की जो जिससे हम डायरेक्टली मतलब ट्रेडिंग करें. Then we can see on page number 80 that is Kabul with its rugged mountainous landscape. काबुल आज का अफगानिस्तान है, पहले काबुल था, today it is Afghanistan, became politically and commercially important from the 16th century onwards. Kabul and Kandahar were linked to the celebrated Silk Route. ये इनका सिल्क का कपड़ों का बिजनेस था. ओके, सिल्क के धागे बनते थे, फिर उनसे कपड़े बनते थे. सिल्क बिसाइड्स ट्रेड इन हॉर्सेस, इनका जो प्राइमरी बिजनेस था वो था हॉर्सेस का बेचना. पूरे काबुल में, अफगानिस्तान में उस वक्त ऐसा ही था, हॉर्सेस का बेचना, खरीदना,
ओके, ज्यादातर वही बिजनेस था, प्राइमरी बिजनेस था. Carried down through this route in the 17th century, Jean Baptiste Tavernier, a diamond merchant, estimated that the horse trade at Kabul amounted to rupees 30,000 annually. Okay, diamond merchant estimated that the horse trade at Kabul उन्हें वो 30,000 का एनुअली उनको इनकम होती थी उसकी, विच वॉज अ ह्यूज सम इन दोज डेज. ओके, कैमल्स कैरीड ड्राइड फ्रूट्स, डेट्स यानी खजूर, कारपेट्स, सिल्क्स एंड इवन फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम काबुल टू अदर सब कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज. स्लेव्स भी बुलाए जाते थे, सेल होती थी उनकी स्लेव्स की. ओके, बेन क्राफ्ट्स इन टाउन, देखो कितना ब्यूटीफुल है ये. इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर, इट इज बिदरी. आप देख सकते हो फिगर 5. A 17th century candle stand brass with black overlay, इसे कहा जाता था बिदरी. और नीचे यू कैन सी अ शॉल बॉर्डर. The craft persons of Bidar were so framed for their inlay work in copper and silver that it came to be called as Bidari. The Panchalas और विश्वकर्मा कम्युनिटी, उस टाइम जो ये काम करते थे ना बिदरी का, ये कम्युनिटी को कहा जाता था पंचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटी. Consisting of goldsmith, bronzesmith, blacksmith, masons, carpenters, ज्यादातर जो टेम्पल्स को बिल्ड करते थे वो कम्युनिटी को पंचालास और विश्वकर्मा कहा जाता था. ये सब ये काम करते थे. They also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs. Similarly, weavers such as Saliyar और कैकोलर्स, ओके, ये सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी थी. ओके, ये वीवर की कम्युनिटी थी. सलियार और कैकोलर्स इमर्ज्ड एज प्रॉस्परस, मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स. ये इतना बिजनेस में इनका प्रॉफिट होता था कि ये टेम्पल्स बनने के लिए डोनेशंस देते थे, इतना इनके पास पैसा था. सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग. पहले कॉटन को क्लीन किया जाता है ना, कॉटन के अंदर पता है एक सीड होता है, उसे निकालकर उस कॉटन को अलग किया जाता है वो सीड से. फिर वो कॉटन को मशीन में एकदम साफ करते हैं, उसमें लगा होता है तो उसे साफ करते हैं अच्छी तरह से. प्रोसेस है. स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स, यानी लोग इंडिविजुअली इसको अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली करने लगे. फिर वो पर्टिकुलर कम्युनिटी में फेमस हो गया था, ये कम्युनिटी में ये ऐसे है. Then we go to page number 82. The changing fortunes of towns. Some towns like Ahmedabad went on to become major commercial cities. Okay, अहमदाबाद गुजरात में जो है एक टाउन है, वो उस समय फेमस कमर्शियल फॉर ट्रेड एंड बिजनेस बन चुका था. और तंजावुर भी, बट अदर्स मतलब तंजावुर, लेकिन बाकी अहमदाबाद इतना ज्यादा फ्लरिश हो गया था कि बाकी सिटीज थोड़े श्रैंक हो गए थे, उनका ट्रेड एंड बिजनेस कम हो गया था. एंड इम्पोर्टेंस ओवर द सेंचुरीज. मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल में है, ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी रिवर, which rose to prominence as a center for silk and became the capital of Bengal. Declined in the course of the century as the weavers faced competition from cheap mill-made cloth from England. Okay, that
दैट इज चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स। उस वक्त कि जो किसी मतलब कि प्रोडक्ट में सबसे आगे निकल गया तो उसे उस पर्टिकुलर शहर का टाउन बना दिया जाता था, कैपिटल बना दिया जाता था। तो उसमें से अहमदाबाद फेमस था, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद का। देन अ क्लोजर लुक, दैट इज हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। You can see the pic on page number figure 3. This is a view of a watch tower through a broken wall of the enclosure of Hampi. That is the architectural splendor of Hampi. Hampi is located in the Krishna-Tungabhadra basin, which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire, founded in 1336. Hampi, it is located in the Krishna Tungabhadra basin, उसके किनारे है ये, which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire, founded in 1336. The magnificent ruins at Hampi reveal a well-fortified city. ओके मतलब उस समय हम्पी एक बहुत ही बढ़िया सिटी हुआ करती थी, वेल फोर्टिफाइड सिटी हुआ करती थी। फोर्ट्स, पैलेसेस, कुछ यूनिक देखने को मिलता था। लेकिन अभी पूरी तरह से वो रुइंस हो चुके हैं। नो मोटर और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स। यूनिक था, इन वॉल्स के अंदर जरा भी सीमेंट नहीं है। और अलग सी टेक्निक थी, फॉलोड वाज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। मतलब उनको खाली ब्रिक्स लगा दिए गए थे और इंटरलॉक कर दिया था आपस में, ऐसे इस तरीके से ब्रिक्स को लगाए थे, ब्रिक्स को, कि वो इंटरलॉक हो चुके थे। जैसे हम लोग कैसे हमारे घर बनते हैं तो सीमेंट से पक्के होते हैं ना घर, तो ब्रिक्स के ऊपर भी सीमेंट लगा लगा के ब्रिक्स रखे जाते हैं और दीवारें बनती है, फिर स्लैब डलता है। लेकिन हम्पी, पूरा हम्पी ऐसा था, सिर्फ वो उनके ब्रिक्स आपस में इंटरलॉक कर दिए गए थे। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चीज, डोम्स, ऐसे डोम्स थे उस टाइम पे, और मतलब बहुत ब्यूटीफुली and pillared halls with niches for holding sculptures। मतलब देखो बिना सीमेंट के दीवारें बन रही है, और यू कैन सी दिस वॉच टावर, ये भी तो बना है, बट कितनी मतलब स्किल, कारीगरी से बनाया गया था। That is, the buildings in the royal complex had splendid arches, domes and pillared halls with niches for holding sculptures. They also had well-planned orchards and pleasure gardens. वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वेल प्लान तरीके से ऑर्चर्ड्स बने हैं फ्रूट्स के, और गार्डन्स बने हैं with sculptural motifs such as the lotus and corbels. ये ब्यूटीफुल गार्डन्स बने हैं, लोटस और कॉर्बेल से फिल्ड है वो गार्डन्स। In its heyday, in the 15th, 16th centuries, Hampi bustled with commercial and cultural activities. Muslim merchants, chetis, and agents of European traders, उस टाइम के जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे, बड़े बड़े जो पैसे वाले थे, चेतीस, ये भी सब जो पैसे वाले लोग थे, एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन, कौन थे? पोर्चुगीज। मतलब कि वो लोगों ने मतलब अपना बिजनेस, ट्रेड एंड बिजनेस शुरू किया हम्पी में। उस टाइम बहुत ही डेवलप्ड टाउन था ये, और अलग सा यूनिक टाउन था हम्पी। तो जो मर्चेंट्स थे, पोर्चुगीज, यूरोपियन ट्रेडर्स, दे थ्रॉन्ग्ड इन दिस मार्केट्स ऑफ हम्पी। मतलब उन्होंने अपना ट्रेड एंड बिजनेस शुरू किया इस हम्पी के अंदर, एंड इट डू फ्लरिश्ड। Temples were the hub of cultural activities and devadasis. देवादासीज यानी टेम्पल की डांसर्स जो हुआ करती थी उस जमाने में। टेम्पल्स हम्पी का एक हब था। हब जैसे हम बोलते हैं ना, आज बेंगलोर का आईटी सेक्टर हब इज ऑफ बेंगलोर, सेम टेम्पल्स उस टाइम
हम्पी का हब था और ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, और देवादासीज यानी टेम्पल डांसर्स परफॉर्म्ड बिफोर द डीटीज, जो लॉर्ड्स एंड लॉर्डेसेस थे उनके आगे वो डांस करते थे, नृत्य करते थे, गॉड्स एंड गॉडेसेस। रॉयल्टी एंड मासेस, मतलब कि रॉयल्टी यानी महाराज भी बैठे होते थे और मासेस जो क्राउड होता था इतना बड़ा। इन द मेनी पिलर्ड हॉल्स, काफी सारे ऐसे पिलर्ड हॉल्स थे। इन द विरूप कक्ष, अ फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल में द महानवमी फेस्टिवल known today as नवरात्रि, उस टाइम नवरात्रि को महानवमी बोलते थे, महानवमी। In the south was one of the most important festivals celebrated in Hampi. Archaeologists have found the Mahanavami platform where the king received, बड़े बड़े आसपास के वो गेस्ट को रिसीव करते थे एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट, और जो उनके छोटे छोटे जो फॉलोअर्स थे, सब्जेक्ट थे, जो सबऑर्डिनेट्स थे, उन्हें ऑनर देते थे, मतलब कुछ ना कुछ उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आते थे। फ्रॉम हियर ही ऑल्सो वॉच्ड डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स। हम्पी फेल इनटू ruin following the defeat of Vijayanagar in 1565 by the Deccani Sultans। और हम्पी को डेक्कन के जो सुल्तान्स थे उन्होंने पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया। कौन थे वो? हम्पी में विजयनगर का राज था ना, विजयनगर, and the rulers of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidar। जो ये गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बिद्दर के जो रूलर्स थे, डेक्कनी सुल्तान्स, उन्होंने हम्पी को 1565 में पूरी तरह से रुइन कर दिया, खत्म कर दिया। Then the gateway to the west, that is Surat. Surat in Gujarat was the emporium of western trade during the Mughal period, along with Cambay यानी आज के टाइम का खंबात, उसे पहले कैम्बे कहा जाता था। So Surat in Gujarat was the emporium of western trade, क्योंकि सूरत पोर्ट ही एक ऐसा पोर्ट था जहाँ से सबसे पहला ब्रिटिशर कहते हैं ना, उसने लैंड किया था इंडिया में। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विथ कैम्बे एंड समवॉट लेटर अहमदाबाद। सूरत वॉज अ गेटवे, एंशियंट टाइम से गेटवे था फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ओरमुज। सूरत हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का। क्योंकि ये एकदम बड़ा गेट था, क्योंकि मक्का मदीना जाता था, तो इनका सबसे बड़ा पिलग्रिम है मुस्लिम्स का। The city was cosmopolitan and people of all caste and creed lived here। ये जो सूरत सिटी थी उस टाइम कॉस्मोपॉलिटन थी, क्योंकि बहुत बिजनेस था, तो हर एक जात पात के लोग यहाँ पे आकर अपना बिजनेस करते थे। महंगा भी नहीं था, रहना खाना पीना सस्ता था, और वो गेटवे भी था पिलग्रिम्स के लिए। सो जो ड्राइवर्स थे टू एंड फ्रो लेके जाने आने वाले, उनके लिए भी बहुत काम का था, मतलब काम बहुत था सूरत में। और डिफरेंट डिफरेंट रंग बिरंगी कास्ट एंड क्रीड के लोग थे यहाँ पे, एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड देयर। इन द 17th century द पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश had their factories and warehouses जहाँ वो स्टोर करते हैं in सूरत। According to the English chronicler यानी ओविंगटन, who was the English chronicle Ovingston,
who wrote an account of the port in 1689. On average, 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. उस टाइम के जो इंग्लिश क्रॉनिकलर थे ओविंगटन, उन्होंने लिखा था कि सूरत उस टाइम एक ऐसा पोर्ट था जहां से फॉरेन कंट्री लोगों का आना जाना था और वो गेटवे था। और धीरे धीरे बाद में ट्रेड एंड बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड के लोग आके सूरत में रहते थे, और सूरत ने धीरे धीरे जो बाहर से लोग आते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, उनके लिए भी जगह बनाई हुई थी कि वो एक रात रुके फिर अगले दिन वो अपने शिप के साथ जा सकते हैं। एंकर फाउंड, एंकर यानी जो शिप्स किनारे में खड़ी करते हैं ना, वो समुद्र किनारे, तो वो एंकर डाल देते हैं पानी के अंदर, तो शिप वहाँ पे रहती है। एंकर निकालने के बाद शिप अपनी जगह से आगे जाती है। बड़ी बड़ी ह्यूज शिप्स की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे सामान लोड होता था, आना जाना। There were also several retail and wholesale shops. रिटेल की शॉप्स भी थी, होलसेल की शॉप्स भी थी, सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स। द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत तो आज भी फेमस है, और आज भी सूरत से बहुत कपड़ा ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर भी जाता है। सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स, द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर फेमस फॉर द गोल्ड लेस। यस, जरी वर्क होता था, गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड का। आज भी होता होगा लेकिन कम हो गया, लेकिन पहले तो फेमस था जरी वर्क। एंड ऑल्सो हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेस। मैंने बताया ना कि वो एक सूरत एक गेटवे था, एंट्रेंस था, पोर्ट था ट्रेड एंड बिजनेस करने का। तो उन लोगों ने बाद में वहाँ पे रहने की भी जगह बनाई, ताकि जो लोग आए तो वो दूर दूर से आए तो वो थोड़ी देर रेस्ट करे, एक आध दिन रुके, फिर अगले दिन अपने सामान के साथ वो चले जाए। All over the world who came to city for business and trade. There were magnificent buildings and innumerable pleasure parks. बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स थी। आज भी आप सूरत में देखो ह्यूज बिल्डिंग्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स की बिल्डिंग बहुत ह्यूज है, एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स भी हैं। द काठियावाड़ सेट्स और महाजन्स, यानी महाजन्स कौन, जो मनी एक्सचेंज करते हैं, जो पैसे देते हैं मार्केट में, अपना पैसा लगाते हैं और बैठ के इंटरेस्ट खाते हैं। एंड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत। It is noteworthy that Surat hundis were honored in the far-off markets of Cairo in Egypt. कहा जाते हैं कि सूरत मार्केट को इजिप्ट, कायरो जो इजिप्ट में है, वो लोग ने सूरत मार्केट हुंडीज को ऑनर दिया था। बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। It is noteworthy that the Surat hundis were honored by Cairo in Egypt, by Basra in Iraq, and by Antwerp in Belgium. However, Surat began to decline towards the end of the 17th century. 17th century आते आते सूरत काफी डिक्लाइन हो चुकी थी। This was because of काफी बहुत reasons की वजह से सूरत डिक्लाइन हो गई, बिकॉज अब वो प्रोडक्शन, वो मार्केट नहीं रही सूरत में। उस टाइम फिर और भी सिटीज टाउन फ्लरिश हो गए होंगे, तो ऑल दिस पीपल हैव स्विच्ड ऑफ टू दैट प्लेस बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर ने ही स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स कोलकाता छोड़ के दिल्ली आ गए। उन्होंने दिल्ली में से सारे मुगल एम्पायर्स को हटा दिया और अपना पूरा राज करना शुरू कर दिया। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स पोर्चुगीज ने ले लिया। कंपटीशन फ्रॉम मुंबई, जो प्रेजेंट है मुंबई है, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668,
और टुडे आज भी सूरत एक बस्लिंग कमर्शियल सेंटर है, बहुत काम है, बहुत लोगों का आना जाना, इट्स अ बस्लिंग कमर्शियल सेंटर, है ना. यू हैव विजिटेड सूरत, काफ़ी वर्क है सूरत के अंदर, काफ़ी काम है सूरत के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, so I will continue in my next class from page number 85. Please go through the lessons till page number 84. Read the lesson, okay? So with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.